Respected dignitaries, dear parents, teachers, and my fellow friends, it is with immense joy and pride that I welcome you all to the annual concert of Crawlers to Flyers Preschool Champions Without Labels, क्योंकि खेल सभी के लिए है और अवसर भी. क्या आप इसमें मानते हैं? Adding to the pride of this evening, our host today is not just any student, but an alumni of our own very preschool. Standing here, she is a testament to the foundation we build at Crawlers to Flyers, proving that the values instilled here stay for a lifetime. So a big round of applause for the host of today's evening, Miss Suhani Shah. Welcome, Suhani. Suhani is alumni of Crawlers to Flyers Preschool. She was a very choosy child from my batch of 2013 and 14 playgroup class. And now Suhani is going to graduate to grade 9th very soon. So it's such a big moment of pride for us, Suhani. And she is the student of Navrachna School Sama. और आज का जो ये इवेंट है उसको होस्ट सुहानी करेंगी आप सबके लिए. So thank you so much, Suhani. Thank you, Alpesh Bhai, Minal Ben. They will be here soon. But thank you so much, and the stage is all yours. Tonight, we celebrate the journey of our little champions, their incredible growth, and the limitless possibilities that lie ahead. But before we dive into this delightful showcase, let's take a moment to talk about our theme for the evening. Champions without labels. क्योंकि खेल सभी के लिए है और अवसर भी. Sports is not just about winning. It is about participation, perseverance, and passion. It is not limited by age, gender, or ability. It belongs to everyone. Through this theme, we celebrate the true spirit of sports, where every child gets an equal opportunity to play, learn, and grow. Sports shapes character, builds resilience, and fosters teamwork. And tonight, as our young stars take the stage, they will remind us that every child has the potential to be a champion regardless of any label. More importantly, we want our children to experience the thrill of playing sports physically, feeling the rush of the game on the field rather than just watching it on screens. Through this concert, we are also allowing our children to be aware of our traditional sports and how fondly they were played in our villages, connecting them to our roots and the essence of real play. The grandfather walks around the room and tries to get the attention of his grandchildren, but they don't reciprocate as they are busy playing games on their phones. हो गया है आजकल इन बच्चों को. ये पूरा दिन सिर्फ अपने फोन्स पे बिताते हैं. ऐसे तो ये इनसे एडिक्ट हो जाएंगे. नाना मुझे ही कुछ करना पड़ेगा. रोहन, why don't you go outside and play with your friends? No, Dadu, I am busy playing this game. It's so cool. But playing outside is so much more fun.
You can run, you can jump and make new friends. But Dadu, my phone is my favorite friend. Oh oh. No, no, I don't think so. Rohan, Tina, chalo chalo, let's go and play outside. Let's play cricket and fly kites. All our friends are waiting outside. It's going to be so much fun. Nana, we are good here. Oh, leave your phones and come with me. चलो 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 जाओ जाओ बच्चों जाओ बाहर खेलो जाओ जाओ चलो इस बहाने ये फोन से दूर तो हुए देखो जरा क्या कर रहे हैं वाह क्या दिन थे बचपन के थोड़ी नादानी थोड़ी शैतानी थोड़ी मनमानी थोड़ी खींचातानी थोड़ा शोर थोड़ा शोर थोड़ा रंग थोड़ी उमंग जब बच्चे थे थोड़े कच्चे थे पर अच्छे थे जब बच्चे थे थोड़े कच्चे थे पर अच्छे थे चल जिए भूल के सारे रूल Life is still beautiful Life is still beautiful कभी बेटाइम मस्ती कभी कॉमिक कतला पतली कभी धूम धड़ाका कभी आंख में चोली कभी फटी पैंट कभी खुला बटन कभी किसी की धुनाई बन के पैंटम जब बच्चे थे थोड़े कच्चे थे पर अच्छे थे जब बच्चे थे थोड़े कच्चे थे पर अच्छे थे चल जिए भूल के सारे रूल Life is still beautiful Life is still beautiful कभी धूप से यारी कभी बारिश की छपाक कभी पेड़ पे चढ़ना कभी गिरना धपाक कभी चादर का टेंट कभी फूलों का पहाड़ कभी तोड़ना आम कभी पड़ोसी का कांच जब बच्चे थे थोड़े कच्चे थे पर अच्छे थे जब बच्चे थे थोड़े कच्चे थे पर अच्छे थे चल जिए भूल के सारे रूल Life is still beautiful ये दादू we had so much fun चलो बच्चों पहले हैंड वॉश बाकी सारी बातें बाद में ओके दादू मिलते हैं ब्रेक के बाद दादू दादू अब हम एकदम क्लीन हो गए आपको पता है हमें बाहर खेलने में बहुत मजा आया रोहन एंड टीना
I'm glad that you both had lovely time with your friends. Playing outdoors exposes us to fresh air, sunlight, and in return strengthens our immune system. It enhances creativity, improves focus, and builds good communication skills. इसीलिए कहता हूँ, इन गैजेट्स का यूज उसी के लिए करना चाहिए जिसके लिए उनकी रचना हुई है. रोहन एंड टीना, अब खेलों की बात निकली ही है तो डू यू नो इंडिया हैज सो मेनी अमेजिंग स्पोर्ट्स. यस दादू, वी प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल इन स्कूल. ओहो रोहन, football and basketball are not games from India. They came from other countries. But many people in India love to play and watch them. Really, Dadu? I always thought they belong to our country, as people around us and even schools promote them. तो दादू, हमारे भारत के खेल कौन से हैं? टीना और रोहन, चलो फिर मैं आप दोनों को बताऊं हमारे भारत के खेल कौन से हैं. बताइए दादू, वी आर सो एक्साइटेड. तो बच्चों, सबसे पहले वो खेल जो हम गांव में सबसे ज्यादा खेला करते थे, और वो था कबड्डी. कबड्डी दादू? हाँ बेटा, कबड्डी, a game from olden times in India where players touch each other to win. कबड्डी को गांव में बहुत ज्यादा खेला जाता था और हमें उसमें बहुत मजा आता था. चलो, अब इसकी बात निकली है तो आप दोनों को उसकी एक झलक दिखा देता हूँ. कबड्डी 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 कबड्डी. के देख, तू भिड़ के देख, फिर ख्वाबों पे तू मिट के देख. सड़क गिर के देख, तू भिड़ के देख, फिर ख्वाबों पे तू मिट के देख. मैदान भी होगा तेरा, तू हक से मान. लगा मिट्टी माथे, लगा मिट्टी माथे, लगा मिट्टी माथे. और ले छलांग, 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 और ले छलांग. लिखी है जो हाथों पर वो बस लकीर है. लिखी है जो हाथों पर वो बस लकीर है. लिखनी आसमानों पर अपनी तकदीर है. पूछा है उसने तुझसे, साया न कर ये मौका. छीन ले अपनी किस्मत, है किसने तुझको रोका. अपनी कमजोरियों की हर हद को लान. लगा मिट्टी माथे, लगा मिट्टी माथे, लगा मिट्टी माथे. और ले छलांग, 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 और ले छलांग. वाह दादू, कबड्डी की एक झलक देखकर तो मजा ही आ गया. रोहन और टीना, आपको पता है कि इस बार
एशियन विमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप 2025 में इंडिया को विनर घोषित किया गया है। इंडिया 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 इंडिया। हाँ हाँ बच्चों, इसके साथ साथ हमारे देश के और भी कई सारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं जो आजकल शहरों में कम बट गांव में बहुत ज्यादा खेले जाते हैं। अच्छा दादू, ये कौन कौन से खेल हैं? खो खो, जो एक पकड़म पकड़ाई का खेल है जिसमें तेजी और फुर्ती की जरूरत है। और यही गांव में एक और इंटरेस्टिंग खेल खेला जाता है जो है गिल्ली और डंडा। अरे ये खेल आप बच्चों का वो फेवरेट खेल कौन सा है? हाँ, क्रिकेट से मिलता जुलता है। क्रिकेट में होता है बैट और यहाँ डंडा और बॉल की जगह पर गिल्ली। तो चलो, अब क्रिकेट की बात हुई है तो उसकी भी एक झलक देख लेते हैं। क्रिकेट 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 क्रिकेट। बच्चों, हमारे जमाने में तो इतने खेलकूद के बाद गाय का ताजा ताजा दूध मिला करता था। तो चलो, अब समय हो गया है एक ब्रेक लेने का और आप दोनों के दूध पीने का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया, जश्न मनाता, सेहत बनाता, लाइफ के मैदान में बाजी मार लाता, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध
के तो मजा ही आ गया। दादू दादू, क्या आपको पता है मेरा फेवरेट गेम है क्रिकेट? बट दादू, I have a question. Yes, Tina, go ahead. Dadu, Mama says that all these sports are for boys and not for girls. Why is this so? We say we are living in independent country. Then why are the girls of our nation still face inequality? दीवारें ऊंची है, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। Oh Tina, you're absolutely right. कोई भी खेल जेंडर देख के नहीं बल्कि अपनी लगन और उस खेल को खेलने की रुचि से खेला जाता है। Girls can play anything they want just like boys. Maybe long ago people thought differently, but now we know that games are for everyone. You are strong, you are smart and you can do anything you dream of. और क्या आपको पता है कि हमारे देश की नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी विमेन टीम वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप में मानी जाती है। The Indian women's hockey team continues to inspire millions with their determination, teamwork and passion for sports. तो बच्चों, अब हॉकी की बात निकली ही है तो चलो उसकी भी एक झलक देख लेते हैं। हॉकी 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 हॉकी। गंगा में भूति गंगा में खेला गनेला में भूत गला में दर में छीटा में होगा कमी
Every child, whether a boy or a girl, should have a chance to follow their dreams. Our country has so many inspiring sportswomen who have made us proud. Let's give our girls the same opportunities as our boys to shine in the world of sports. टीना, आप मुझे बताओ आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है और मैं और दादू मिलकर आपके साथ खेलेंगे. ये अब भैया और दादू मिलके मेरे साथ खेलेंगे. आज बात सिर्फ हमारे घर की टीना की नहीं, पर हमारे पूरे देश की बेटियों की है. आज किसी भी खेल को देख लीजिए, हमारे देश की बेटियां कितनी आगे बढ़ गई हैं. बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन्हें बचपन से टॉयज के नाम पर किचन सेट देना चाहते हैं, या ये प्रारंभिक वर्षों से उन्हें जो बनना है और उनकी जिसमें रुचि है उसे सपोर्ट करते, उनके सपनों को पंख देना चाहते हैं. बेटा हो या बेटी, दोनों को ही समान अवसर देना हर माता पिता का फर्ज है. क्यों है ना? तो चलिए अब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए और मेरे साथ शपथ लीजिए. My dear child, I promise to love you unconditionally. I promise to let you make mistakes and learn from them. I promise to guide you through the journey of life with patience and understanding. I promise to respect you and embrace you who you choose to be. I promise to be present in your today so I can live on in your memories tomorrow. Thank you, my dear child. मैं आशा करता हूँ कि आज की ली हुई ये शपथ आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि बच्चे चाहे ये आपके हैं, पर ये हमारे आने वाले कल का भविष्य हैं. तो चलिए अब आप खड़े ही हैं, तो क्रॉलर्स टू फ्लायर्स के वो सभी चैंपियंस जिन्हें किसी भी लेबल की जरूरत नहीं है, जो यूनिक है और जिन्हें जरूरत है तो सिर्फ एक अवसर की, उन सभी के लिए एक बार जोरों से तालियां बजा दे. थैंक यू मम्मी डैडी, थैंक यू ग्रैंड पेरेंट्स, थैंक यू ऑल द गेस्ट. It goes without saying that it takes a lot of courage to be on stage and perform in front of others at this young age. A big round of applause for all our little ones. Boys don't play with dolls. Girls don't like us. क्या लड़कियों जैसा रो रहा है? Oh my god, it's a girl. Yes, I'm a girl. And yes, I am a boy. और हाँ, कभी कभी अब सबके लिए ये मानना काफी डिफिकल्ट होता है कि मुझे भी रोना आता है, कि काश मुझे भी अच्छी लग सकती है, और फिर हम दोनों का फेवरेट कलर हो सकता है. Chill ma, it's just a color. And you know, we can both love sports. चाहे जितनी भी बार गिरे. घर का काम मैं भी सीख सकता हूँ, सिर्फ मैं नहीं. कभी ये भी मानना बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम दोनों सेम ड्रीम देख सकते हैं. हवा में ऊंचा उड़ने का ड्रीम, या जमीन पर ठुमकने का ड्रीम, सुपर हीरो बनने का ड्रीम, स्टाइल से जीने का ड्रीम. ड्रीम तो ड्रीम होता है ना. हम एक दूसरे से जीत सकते हैं, हम एक दूसरे से हार सकते हैं. But Ma, Pa, we are not here to win or lose. We are here to live as an equal generation.
So when you are making the rules, please same rules बनाना हम दोनों के लिए. And raise us not the way you were raised, but the way we were born. Equal. सूरज जैसे चमकेंगे देखे है साडी अखियां ने है सपने अंबरांडे ए सपने अंबरांडे बूंद बूंद जोड़ेंगे पल पल दूर दूर बह जाएंगे फिर ना समंदरा दे फिर ना समंदरा दे ऐसे खड़े है जाना पड़े ना कम हमको तोड़ सिद्धते हरे जनूनी बड़े अगर के न भूल एक जिंदगी मेरी सवारिशा एक तुम्हें पूरी करा एक जिंदगी मेरी सवारिशा एक तुम्हें पूरी करा एक जिंदगी मेरी सवारिशा मुश्किल हमें रोकना रात है कजले वाली दूर बड़ी दिवाली दीवे ढूंढे अखियां दिल वाले घोंसले में पंछी बना के यारो हमने उम्मीदा रखिया मैंने हारना नहीं है चाहे कुछ भी करे दुनिया जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद जय हिंद जय हिंद. थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू पेरेंट्स. गुजराती में एक कहावत है कि पाका घड़े काठा न चढ़े. जब घड़ा पक जाता है ना तो उस पे हम कोई शेप कोई आकार नहीं दे सकते. तो मैं जब ये बच्चों को देख रही थी मैं अपना बचपन याद कर रही थी कि अपना बचपन क्या था और अभी क्या है. आई एम डैम श्योर कि यहाँ जो बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे थे उनमें से कोई ना कोई तो ओलंपिक में मेडल लाएगा, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं ना वही अपने कल का भविष्य है. अपना दुर्भाग्य समझो या फिर अभी इतना अवेयरनेस नहीं था ये समझिए, अभी तक ओलंपिक में इंडिविजुअल मेडल सिर्फ 2 आए हैं. गोल्ड जो है
वो सिर्फ 2 आए हैं। 2008 में अभिनव बिंद्रा सर ने गोल्ड लिया था शूटिंग में, फिर उसके बाद नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड लिया था। तो अभी तक कोई गोल्ड आया नहीं है, बट जो थीम था ना वही मुझे काफ़ी प्रभावित कर गया। और जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ता जा रहा था ना, तो आरती मैम मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी ही स्टोरी आगे बढ़ रही है। मैं बेसिकली राजस्थानी फैमिली से हूँ और आपको पता है कि राजस्थानी फैमिली थोड़ा रिजिड रहती है। और 2007 में मैंने शूटिंग शुरू किया था, तो शूटिंग मतलब सब लोगों को ये लगता था कि आर्मी की गेम है, इसमें तो लड़कियां आगे बढ़ती नहीं है। और मेरे घर में कई सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो मुझे रोक रही थी, बट मैंने कभी गिव अप नहीं किया। और इसी तरीके से मेरे पास भी एक अच्छे टीचर्स थे और पेरेंट्स थे। पेरेंट्स और टीचर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। कभी कभी लगता था जब मेडल्स नहीं लाती थी या कुछ नहीं करती थी तो ऐसा लगता था कि नहीं है, आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। बट पेरेंट्स ने और टीचर ने जिस तरीके से मुझे मोटिवेट किया, और जेंडर इक्वालिटी वो तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि मैं राजस्थान की बुराई नहीं कर रही, बट राजस्थान में ये चीज़ है कि बॉयज़ ये चीज़ कर सकते हैं, गर्ल्स क्यों। ऐसे ही मेरी दादी और कई सारे राजस्थान से ऐसे कॉल मैसेजेस आते थे कि ये कहाँ जाएगी, कहाँ कलेक्टर नहीं बनाएगी। बट मम्मी ने कहा कि कुछ भी है उसे उसके सपने पूरे करने हैं। और मैं गुजरात की फर्स्ट फीमेल शूटर हूँ जिसने 300 मीटर, अभी तक सब लोग 10 मीटर और 50 मीटर्स खेलते थे, बट 300 मीटर कोई नहीं खेलता था। तो इनके ही पेरेंट्स और मेरे टीचर्स ने जिस तरीके से मुझे प्रेरणा दी, उनकी ही प्रेरणा के रूप में मैं गुजरात की पहली लड़की थी जिसने 300 मीटर में रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए गोल्ड लिया। मतलब अभी तक कोई फीमेल्स थी ही नहीं 300 मीटर में। और इसी तरीके से बड़ौदा की एकमात्र राइफल शूटर हूँ जिसने सरदार पटेल अवार्ड लिया है। गुजरात गवर्नमेंट ने मुझे सरदार पटेल अवार्ड से नवाजा है। सो थैंक यू सो मच मैम मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और जो थीम था चैम्पियंस विदाउट लेबल्स, यही चीज़ है लाइफ में, और यही चीज़ आप अपने बच्चों को समझाइए कि हाँ, पहले ये चीज़ भी थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, बट अब ये हो गया है पढ़ाई लिखाई के साथ खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाबों के नवाब। सो मेरी ये बहुत मतलब आपसे दिल से मतलब ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ाइए। स्पोर्ट्स में भी आगे फ्यूचर है, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर नहीं है। स्पोर्ट्स कोटा में कई सारी जॉब्स वगैरह होती है और साथ ही साथ में हम भारत देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। मुझे पता है कि ये बच्चे मेरे पास नहीं रहने वाले, पर वो जहाँ भी जाएंगे ये दिन आप हमेशा याद रखेंगे, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। थैंक यू सो मच।